Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So hope you all have gone through the videos that I have shared. So let us start. Today we are going to discuss some of the questions that were asked in 2020 annual new exam. Okay. So write it down the question. लिखिए question. Simplify the following CFG and convert it into CNF. Productions are given. A is rewritten as epsilon. Again, S is rewritten as AAB, AAB. Okay. B is rewritten BBA and epsilon. Fine. Have you written the question? So before going to solve this question, let us revisit the things that are required for solving this question. Okay. So first thing is, what do we mean by reduced grammar? Okay. Four tuple representation. G is equal to V, T, P, N, S. Suppose this is a CFG. So G is said to be a reduced or non-redundant if every symbol in union of variable and terminal, okay, appears in the course of the derivation of some terminal string. Meaning what? Suppose if X is present in V union T, there exists a derivation, and derivation is what? From the start symbol. Okay, so we are talking about this symbol, and this symbol is nothing is belonging to V union T. It must be in some derivation of a string. Okay, that belongs to the language generated by that grammar. Okay, so what are the steps? First one, we have to construct a grammar G1 equivalent to the grammar the given grammar G, so that every variable in G1, that is V1, T, P1 and S, derives some terminal string. Okay, so you can see here variable have been changed, terminal remains as it is, but production rules are also going to change. So in the first step, we are going to construct a grammar in which every variable derives some terminal string. In the second step, we construct an equivalent grammar G prime equivalent to G1. G1 is nothing but the grammar in which every variable derives some terminal string, so that every symbol in G prime appears in some sentential form of G prime, which is equivalent to G1 and hence to G. So in this way we are going to reduce the grammar. Okay, fine. These are the two steps. Let us see in detail. So step 1, talking about every variable derives some terminal string. Okay, so in this we you have seen the algorithm that we initialize previous v is equal to null phi, and then we find the variables which are directly deriving some terminal string, that is a is rewritten as w for some w in t star closure of t, and this process is repeated till we get the condition that previous v is equal to next v. So till then the process is repeated. So we assign previous v with the value of next v, and next v has been updated by union, taking union of previous v and the production
of the form A is rewritten as alpha, in which you can see alpha appears in union of T and previous P. So ultimately what exactly it means? Suppose these are the productions. You can see here A is deriving terminal string, B is deriving terminal string, and suppose in the another production S is rewritten as AB. So in the first step you can see that next V will comprise of what? A and B. Why? Because these are directly deriving some terminal string. But when we talk about S, you have to go in this loop, and S is indirectly deriving because A and B are on the RHS of the production, and it is in this step that you are going to consider S. क्लियर है ना? कैसे अपडेट कर रहे हैं? आर्यन, Yes, sir. ये हम लोगों ने डिटेल में सारे इंडिविजुअल जो वीडियोस थे उसमें भी शेयर किया हुआ है. जस्ट अ क्विक रिकैप कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग इन द क्वेश्चन. फाइन. नेक्स्ट we construct a grammar G prime equivalent to G1 so that every symbol in G prime appears in some sentential form of G prime which is equivalent to G1 and hence to G. In this step we start from the starting symbol, we find non-terminal and terminal that are reachable from S, update these values and get the desired result. Okay. Now, what do you mean by a null production? Aniket? Null production, if A tends to epsilon means any symbol which tends to epsilon, if it is present in the production rule, then it is null production. Very good. You can see the definition as well. A CFG may have production of the form A is rewritten as epsilon, okay, and it is nothing but just to erase the value of A, okay. So these kind of productions are called null productions. So a variable A in a CFG is nullable if it derives epsilon in 0 or more steps. So how we are going to construct an equivalent grammar with no null production? So if G is a CFG, we can find G1, that is V, T, P1 and S. Variable terminal will remain same, but production rules will change. Okay, having no null production. And if you are removing null production, then definitely the language is not going to contain epsilon or empty string. Okay, so what are the steps? You have to first find out the set of nullable variables and then construct production rules. Fine. Again, you have to use this kind of thing for finding nullable variables. Those directly deriving epsilon will put in this value next null, and then you are going to repeat this until previous null and next null becomes equal, and you have to find whether such kind of productions are available or not, in which indirectly you are deriving some null things. Okay, so in this way you are going to find out the nullable variables, and then you have to construct the production. So any production whose RHS does not have any nullable variable is included in P1. So those which are not having null kind of things, they are included directly in P1. And if this kind of production is P in P, then production of the form A is rewritten as alpha 1, alpha 2 till alpha k are included in P1. But condition is what? Alpha j is equal to xi if xi belongs to nullable V or
alpha I is equal to xi or epsilon if alpha xi is belonging to nullable v, and these whole things are not going to be equal. Okay, ये does not belong to होगा. फाइन, क्लियर है. एग्जाम्पल देखा था, ये हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आप देख लेंगे कि एक साथ चेंज नहीं करना है, because if you are going to substitute simultaneously, then ultimately what will happen, you are going to get a null production. Suppose you are having this kind of production, a is rewritten as epsilon, b is rewritten as epsilon, s is rewritten as a or ab. फाइन. सो नलेबल वेरिएबल फाइंड करना है, तो डायरेक्टली कौन कौन से नल डिराइव कर रहे हैं बताइए. ए एंड बी. फाइन. और जब हम लोग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करेंगे तो यू कैन फाइंड हियर एस इज आल्सो having a b in RHS, so this also is going to represented as null, so s is also going to be included. तो ये nullable variable हो गया, तो अल्टीमेटली इन दोनों को तो हटा देना है. व्हाट अबाउट दिस प्रोडक्शन, s is rewritten as a. देखिएगा ध्यान से, ये nullable है ना, यस और नो. यस सर. तो यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोडक्शन तो रहेगा ही, s is rewritten as this thing, बट एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग इसको नल कर देंगे, तो ये दोनों प्रोडक्शन हो गए. प्लस s is rewritten as ab, ध्यान से देखिएगा, तो अल्टीमेटली ये दोनों नलेबल हैं. एक साथ अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, s is rewritten as epsilon, तो ये तो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, तो क्या करना होगा, s is rewritten as ab, s is rewritten as a and s is rewritten as b. एक बार इसको नल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इरेज कर दिया, एक बार इसको नल से सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट p1. फाइन. नेक्स्ट, यूनिट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को जस्ट रिप्लेस कर रहा हो, तो ये क्या कर रहे हैं, यूनिट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, सो you can define here a unit production or a chain rule in a CFG. G is a production of the form A is rewritten as B, where A and B are variables in G. How to eliminate? You have to find out the pairs, set of pairs, such that A is rewritten or deriving B in 0 or more step by unit production. These are the algorithms, the steps, okay, to find out the pair. If the same variables are there, we are going to incorporate that in unit of A for every variable in A. Fine. Now condition is that if AB is belonging to unit of A and B is rewritten as C, it is included in P, then you have to include A comma C in this set, unit of A. And you have to find unit A for every variable, and then you have to construct the production. How? Remove all unit productions, and for every pair of unit variable in unit A, that is x comma y, if y is rewritten as alpha belonging to P is a non-unit production, meaning what? Suppose you are having this thing, A is written as B, B is written as C, and C is rewritten as suppose A. Then you have this pair in unit of A, you are going to have AA, AB and AC. Fine. So you are going to remove these productions and directly rewrite the production as A is rewritten as A. Okay, क्लियर है ना, यूनिट प्रोडक्शन आपको कैसे रिमूव करना है. अगर नहीं है तो फिर आपसे वापस जो है जो शेयर किया है उसको देखेंगे. ओके,
Now the question is asking about simplify the given grammar. Question देखा आपने? Before obtaining the CNF, what you have to do? You have to simplify. Steps क्या हैं? Elimination of null production, elimination of unit productions, then the variables deriving some terminal strings, and then the symbols must appear in some sentential form. So these are the steps for simplifying the CFG. Okay. Chomsky normal form. Production किस फॉर्म में रह सकता है? A is rewritten as A is rewritten as BC और S is rewritten as epsilon अगर epsilon is in the language generated by grammar G. Okay, so CNF का फॉर्म है, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं RHS में या फिर एक टर्मिनल सिंबल और एप्सिलॉन अलाउड है कब? जबकि यह लैंग्वेज का पार्ट हो। स्टेप्स क्या हैं? Elimination of null production and unit production, elimination of terminals by introducing variables, then restricting the number of variables on RHS of the production rule, because आपके लिए जो अलाउड है वो इसी फॉर्म में दो वेरिएबल रह सकते हैं, या तो इस तरह का टर्मिनल सिंबल रह सकता है, isn't it? तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। A is rewritten as B1 B2 till Bn is a production rule. तो यहाँ दो वेरिएबल रखने हैं, तो क्या करना है आपको? B1 को एज इट रखा है, B2 टू Bn को आपने क्या किया? C1 से रिप्लेस किया। अगेन C1 B2 C2 C2 B3 C3, फाइन, till we get this condition. Okay, so these are the steps for converting a grammar into Chomsky normal form. You have to eliminate the null production, then unit production, again elimination of terminals, you have to introduce some variables, and then you have to restrict the number of variables on RHS. Fine. Coming on to this question. ये क्विक रिकैप हो गया जो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था मैंने। फाइन, अब मुझे बताइए कि पहला स्टेप क्या करना होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। Yes, anyone? Elimination of null production. Very good. So elimination of null production. चलिए करते हैं हम लोग। स्टेप 1 लिख लीजिए। अब आप लोग साइमल्टेनियसली काम करेंगे इसी तरह से। लिखें एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। अब ध्यान होगा सबसे पहले एलिमिनेशन जो कर रहे थे उसमें नलेबल वेरिएबल फाइंड करना था ना, यस और नो? यस सर। तो प्रोडक्शन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। ये दो हम लोगों को सेट बनाना था, सेट ऑफ वेरिएबल्स, यही था ना, प्रीवियस नल और नेक्स्ट नल। इनिशियलाइज करना था इसको 5 से, और नेक्स्ट नल में पहली वैल्यू क्या रखते थे, जो कि डायरेक्टली क्या करता, नल को प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो यहाँ देखिए A इज रीरिटन एज एप्सिलॉन, है ना, एंड B इज रीरिटन एज एप्सिलॉन। तो डायरेक्टली आपको दो वेरिएबल्स ऐसे मिल गए ना जो कि नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो हम लोगों का नेक्स्ट नल में क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? A एंड B। A एंड B। अब चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, प्रीवियस नल और नेक्स्ट नल है क्या इक्वल? नहीं। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट कर देना था, प्रीवियस नल इज इक्वल टू नेक्स्ट नल, और उसके बाद नेक्स्ट नल की वैल्यू क्या करनी थी, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आप देखते हैं कि क्या इनके कॉम्बिनेशन के साथ कुछ आप और ऐड कर सकते हैं जिससे कि क्या मिले,
एक नया नलेबल वेरिएबल मिल जाए। ओके, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है? एक तो केवल यही वेरिएबल बाकी है, ए और बी तो हो गए। एस में देखिए ए और बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्मिनल स्ट्रिंग मौजूद है। अगेन यहाँ पे क्या है, ए मौजूद है, तो ये एप्सिलॉन भी होगा तो ये क्या है, कंप्लीट इरेज नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू से दैट वी आर गोइंग टू ऐड नथिंग। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, नलेबल वेरिएबल्स आपको मिल गए ना? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि प्रीवियस नल और नेक्स्ट नल की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो नलेबल जो हमारे पास वेरिएबल है वो हो गया क्या, ए एंड बी। ये फाइंड कर लिया, तो अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्शन फाइंड करना है। फाइन, सो जस्ट सी अबाउट एस प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं, इसमें कौन कौन से नलेबल वेरिएबल हैं बताइए जल्दी से। ए और बी है ना, Yes, sir. और यहाँ पे एक मौजूद है, टेकिंग वन प्रोडक्शन एट ए टाइम। सपोज एस इज रीरिटन एज ए बी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डेंस में ए प्रोडक्शन तो रहेगा ही, साथ ही साथ अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको अगर इरेज करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी, है ना? Yes, sir. ये ध्यान रखिए, बस यहीं पे आपको समझना है। ये नल प्रोड्यूस करता है तो इसके करस्पॉन्डेंस में हमने क्या किया, इसको यहाँ इरेज किया। बी अगर इरेज करेंगे तो A. ठीक है, और अब दोनों भी इरेज कर सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये नलेबल वेरिएबल्स हैं। तो सिर्फ क्या बनेगा, ये बनेगा ना, ट्रू और नॉट? Yes. फाइन। नेक्स्ट सेकेंड प्रोडक्शन क्या था, ए बी। ओके, सो ए बी। ओके, अब इसमें एक ही नलेबल वेरिएबल है ना, Yes, sir. तो इसको इरेज करेंगे तो क्या बनेगा, A. ए। तो एस के करस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑब्टेन कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है, ये नल प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब ए इज रीरिटन एप्सिलॉन एंड बी इज रीरिटन एप्सिलॉन, ये प्रोडक्शन रूल में अब नहीं होगा। फाइन, बी के करस्पॉन्डेंस में देख लेते हैं, क्योंकि ए के करस्पॉन्डेंस में आपको एक ही प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ए इज रीरिटन एप्सिलॉन, इसको आपने रिमूव कर दिया। अब बी के करस्पॉन्डेंस में देखिए ये प्रोडक्शन आपको हटा देना है, बचा क्या, बी बी ए। सो बी बी ए एंड करस्पॉन्डिंगली यू आर गोइंग टू हैव, ये नल से आप रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, B. B. यहाँ तक क्लियर है? यस और नो Yes, sir. सबको? श्वेता? Yes. ठीक है, तो अब पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे कोई क्या है, यूनिट प्रोडक्शन दिख रहे हैं, इस तरह का कोई प्रोडक्शन जहां दोनों साइड में केवल एक वेरिएबल हो, एलएचएस और आरएचएस में? No, sir. तो मतलब ये हुआ कि जो स्टेप 2 था, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऑर्डरिंग ध्यान से रखिए, देखिए एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन पहले होगा और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन होगा, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों, मान लीजिए कुछ इस तरह का प्रोडक्शन रखता है और ए और बी नलेबल रहते, तो क्या एक प्रोडक्शन मिलता है ना, एस इज रीरिटन एज ए, एस इज रीरिटन एज बी, मिलता ना इरेज करते अगर? तो ए और बी अगर नलेबल है और इस तरह का प्रोडक्शन है आपके पास, तो ये मिलता कि नहीं? Yes, sir. मिलता.
हाँ, तो ये क्या है कि आपको ऑर्डरिंग ध्यान रखना है। जब भी आप एलिमिनेट करेंगे नल प्रोडक्शन तो यू आर माइट बी गेटिंग सम यूनिट प्रोडक्शन। सो सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन करना है। ओके, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। अब क्या करना था, ये ऑर्डरिंग हमेशा याद रखना है क्योंकि रिड्यूस ग्रामर की बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो यू माइट नॉट बी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, स्टेप 3 क्या था बताइए। यस, तो ग्रामर बनाना था जिसमें हाँ वो नॉन टर्मिनल सिंबल को लेना था जो डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल को डराइव कर रहा है। हाँ, मतलब उसमें क्या है, डायरेक्टली की बात नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिड्यूस्ड ग्रामर और इक्विवेलेंट ग्रामर इन विच ईच वेरिएबल डिराइव्स सम टर्मिनल स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक है, स्टेप 3 में हम लोगों को यही करना था। तो स्टेप 3 की अगर बात करें तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ऐसा ग्रामर, इक्विवेलेंट ग्रामर जिसमें हर एक वेरिएबल क्या करें, डिराइव्स सम टर्मिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एल्गोरिदम ध्यान हो तो ये अगेन प्रीवियस वी और नेक्स्ट वी की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। जस्ट सी, ये एल्गोरिदम देख लीजिए। ओके, यहाँ देखिए डायरेक्टली जो टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर रहा था उसको नेक्स्ट वी में असाइन कर रहे थे, है ना। और उसके बाद फिर क्या कर रहे थे, लूप को रिपीट कर रहे थे जब तक कि प्रीवियस वी और नेक्स्ट वी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ओके, और नया जो वेरिएबल सेट है उसको हम लोग नेक्स्ट वी से लास्ट में असाइन कर रहे थे जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, फाइन। सो प्रीवियस वी की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। नेक्स्ट वी आपको देखना है कौन कौन से वेरिएबल, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली डिराइव कर रहे हैं टर्मिनल स्ट्रिंग, बी को कंसीडर करते हैं, डिराइव कर रहे हैं ना, ये सब यस ना। सर। एस की अगर बात करें, ए ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ है, ये जो दोनों ये टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है तो हमारा डायरेक्टली कौन कौन से हो गए, एस एंड बी। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है, दोनों इक्वल तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वी में नेक्स्ट वी की वैल्यू डाल देंगे, एस और बी हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए कि एस और बी और टर्मिनल जो आपके सिंबल्स हैं उसका कोई कॉम्बिनेशन क्या है आरएचएस में, किसी वेरिएबल के करेस्पॉन्डेंस में, यस और नो। यस कहाँ पे है बताइए, एस से ए बी क्या एस इज रिटर्न है, ए बी ए बी। तो ये तो हम लोगों का वेरिएबल आ ही चुका है ना, नया वेरिएबल तो नहीं है, एस और बी तो आ चुके हैं। मतलब यहाँ दो ही वेरिएबल बचे थे ना जब नलेबल आपने हटाया था, तो ए तो ऑलरेडी क्या हुआ, अभी यहाँ मौजूद है, प्रोडक्शन फॉर्म में ये सारे मौजूद हैं वेरिएबल्स, लेकिन अब यहाँ पर ए अपियर होगा क्या, जो कि टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर रहे हैं, नो सर। नहीं ना। तो मतलब क्या हो गया, अब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, नहीं। असाइन हुआ एस और बी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रीवियस बी नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, लूप से बाहर आ गए।
आपको नया जो वेरिएबल सेट है V1 वो मिल गया। उसमें कौन कौन से वेरिएबल रहे? S और B। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो जब A वेरिएबल अब वेरिएबल सेट में नहीं रहा तो ये जिस जिस प्रोडक्शन में मौजूद है वो प्रोडक्शन में रहेगा क्या? यस, बताइए। जब वेरिएबल में ही नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन रूल में रह सकता है क्या? नहीं सर। नहीं रहेगा। तो आपका जो नया प्रोडक्शन सेट हुआ उसमें कौन कौन से रूल होंगे ये देखिए ध्यान से। S इज री रिटेन एज A B, again A A B A and A A। B के करेस्पॉन्डेंस में भी देखिए दो प्रोडक्शन रूल्स है ना, B B A और B B, लेकिन इसमें क्या है A मौजूद था तो अब क्या हो जाएगा B B लिख के। कहीं कंफ्यूजन है तो उसको पूछ लीजिए। कहीं कंफ्यूजन है? स्टेप्स को रिपीट करिए पहले तो। Elimination of null production, step 1. Step 2, elimination of unit production. Step 2, each variable derives some terminal strings, so we derive the reduced grammar. और कोई स्टेप है इसमें? सोच के बताइए जल्दी से। Sir, restricting number of variables in RHS. रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स? नहीं। So now we'll do the sentential part. एग्जैक्टली स्टेप 4 मैंने स्किप किया था, अभी नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि आपको रिकॉल करना है। ओके, पहला स्टेप क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, दूसरा यूनिट प्रोडक्शन, तीसरा स्टेप था कि आपको जो भी वेरिएबल है ग्रामर में वो क्या करने चाहिए, कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने चाहिए। और चौथा स्टेप क्या है, जो भी सिंबल्स हैं वो किसी न किसी सेंटेंशियल फॉर्म में रहना चाहिए। ओके, तो मतलब ये कि S से डायरेक्टली डिराइव होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए स्टेप 4 की अगर बात करें, स्टेप 4 सम सेंटेंशियल फॉर्म, तो नॉन टर्मिनल की बात होगी और टर्मिनल की बात होगी। तो S से आपका डायरेक्टली डिराइव होना है। तो देखिए S से क्या क्या सिंबल्स, टर्मिनल की अगर बात करें तो A डिराइवेबल है, फाइन, और नॉन टर्मिनल की बात करें तो B डिराइवेबल है। नेक्स्ट B से स्मॉल b डिराइवेबल है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों वेरिएबल जो कि ग्रामर में हैं और ये जो दोनों टर्मिनल्स थे जो ग्रामर में हैं वो क्या है, S से डिराइवेबल है। तो मतलब किसी न किसी सेंटेंशियल फॉर्म में वो मौजूद होगा। यही चीज कहा गया था ना। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये जो भी सिंबल्स हैं V यूनियन T में वो सब के सब क्या है, S से रीचेबल है। तो डेफिनेटली these all productions are going to be in the grammar after step 4। तो क्लियर है ये? ओके, तो यहाँ तक आपने जो स्टेप्स किए इससे क्या हुआ, you have got the simplified grammar। ओके, पूरा एक बार स्टेप रिविजिट कर लीजिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं, CNF की बात करते हैं। CNF में आपको पहला स्टेप क्या था, एलिमिनेशन ऑफ नल एंड यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना था,
जो भी प्रोडक्शन है जिसमें टर्मिनल जो सिंबल्स हैं उसको इस तरह से लिखना था ताकि इसको पहले एक हमने स्लाइड में आ जाते हैं। प्रोडक्शन आपने लिख रखा है ना, क्या क्या प्रोडक्शन है? S is rewritten as AB and AAB, next A or AA and B is rewritten as BB। ये प्रोडक्शन है, ठीक है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो जो हम लोगों को अलाउड है वो क्या है, वेरिएबल एक रहे LHS पे, यहाँ पर क्या है एक टर्मिनल रहे, या फिर एक वेरिएबल और RHS में दो वेरिएबल्स, या फिर S is rewritten as एप्सिलॉन रहे। और ये कब रहेगा? इफ null is part of null belongs to L of G। ओके, तो ये तो अभी आपका केस नहीं है, यहाँ पर नल आपने रिमूव कर रखा है, तो इस फॉर्म में लाना है। ध्यान से देखिएगा, पहले प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। B is rewritten as BB, क्या ये डिजायर्ड फॉर्म में है CNF के? बताइए जल्दी से। ये आपका नो सर। ये है, दो फॉर्मेट है। यहाँ क्या है, दो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं ना, तो आपको करना ये है कि जो टर्मिनल सिंबल्स हैं उसके लिए रीराइट करना है। तो क्या किए, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, सपोज CB। ये ध्यान से समझिएगा, CB इज रीरिटन एज B, ये आपने इंट्रोड्यूस किया, तो अल्टीमेटली अब ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, B इज रीरिटन एज CB। क्लियर? अब ये डिजायर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं? वेरिएबल यस में सर। Yes, sir. आप S और B रखा था, उसके साथ साथ एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज CB। ओके, नेक्स्ट अब कंसीडर करते हैं यहाँ पे S इज रीरिटन एज AB, क्या ये है डिजायर्ड फॉर्म में? नो सर। नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्शन ऐसा यूज कर लेते हैं, CA इज रीरिटन एज A, यहाँ पर वेरिएबल में CA इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, S इज रीरिटन एज CAB। अब ये आ गया कि नहीं डिजायर्ड फॉर्म में? Yes, sir. अब इसको कंसीडर करते हैं AAB। AA के लिए आपने ये लिख रखा है, तो S इज रीरिटन एज CAB, ये हो जाएगा। सिंपली आपने सब्स्टिट्यूट किया LHS को इस A के बदले में, तो ये आपके दो वेरिएबल्स यहाँ आ गए, लेकिन तीन वेरिएबल अलाउड है क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली जो आपको याद हो, इस तरह का प्रोडक्शन है अगर B1 टिल Bn, तो ये जो पार्ट है B2 से लेके Bn तक, इसके लिए एक नया वेरिएबल आप रख रहे थे, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है CAB। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नया वेरिएबल रखना है, S इज रीरिटन एज C1, ठीक है। और C1 के करेस्पॉन्डेंस में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, CAB। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन आपका कवर हो गया। ओके, Yes. तो ये दोनों प्रोडक्शन आ गए, यहाँ पे वेरिएबल्स में एक और आपका वेरिएबल ऐड हो जाएगा, दैट इज C1। फाइन, S इज रीरिटन एज AA, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S इज रीरिटन एज CA। अब ये दो वेरिएबल्स हैं RHS में, डिजायर्ड फॉर्म में है, यस और नो? Yes, sir. और S इज रीरिटन एज A, ये आपका CNF में है क्योंकि A इज रीरिटन एज A,
A belonging to T, A belonging to V, ये अलाउड है। ओके, तो जो आपका करेस्पॉन्डेंस में नया CNF बना, तो वेरिएबल सेट उसमें क्या हो गया, न्यू वेरिएबल जो आपके है एस बी सी बी सी ए C1, और जो प्रोडक्शन नए रूल्स आपके बने कुछ इस तरह से बने, P इज रीरिटन एज CB, S is rewritten as CAB, S is rewritten as CAC1, C1 is rewritten as CAB, and S is rewritten as CACA, S is rewritten as A, CA is rewritten as A, and CB is rewritten as B. Covered, I think, all the productions. Yes or no? Yes, sir. Aniket? Yes, sir. Good. सबका बना? अगर ये चीज क्लियर है, देखिए 7 नंबर का ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जल्दी से बना लीजिए। Yes, sir. बाकी लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, ग्रामर G is said to be in CNF if production is of the form, ये लिखना है, and then you have to find out the solution. Okay, चलिए देखते हैं यहाँ पहला स्टेप होगा इसमें elimination of null and unit production, No, sir. because no null production and no unit production is present in the given grammar. Fine, so हमको क्या करना है, अब renaming the variables करना है। Okay, so S is rewritten as BA, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बताइए? CBA. CBA, और जैसे ही CBA लिखा इसके करेस्पॉन्डेंस में प्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक, तो पहला वाला फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट, S is rewritten as AB, इस तरह से लिख सकते हैं। Yes. फाइन, अब आपने ये प्रोडक्शन यूज कर लिए हैं, जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो A वाला प्रोडक्शन देखिए, A is rewritten as CBAA लिख सकते हैं। A को C1 लिख देंगे फिर। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फाइन, तो अब आपके यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, तो राइट मोस्ट टू लेफ्ट आपको आना है, तो A is rewritten as C1 लिख सकते हैं, और जैसे ये इंट्रोड्यूस किया C1 is rewritten as what, क्या हो जाएगा बताइए? AA। ओके, नेक्स्ट दूसरे प्रोडक्शन की बात करते हैं, A is rewritten as CAS, ये तो डिजायर्ड फॉर्म में हो गया ना। A Yes. rewritten as A, ये भी डिजायर्ड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट B वाले प्रोडक्शंस की बात करते हैं, CABB, अगेन CA-C2. B is rewritten as CA-C2, and C2 is rewritten as BB. okay. Next, B is rewritten as BS, BBS. fine, and B is rewritten as B। तो इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन बन गया ना। Yes.
फाइन। तो अब ये जो ओवरऑल था ग्रामर की अगर बात करें तो क्लियर हुआ कि नहीं? यूनिट प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रिडक्शन, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये जो क्वेश्चंस आए हैं, नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस। बना लेंगे क्वेश्चंस? Yes. वेरी गुड। Yes, sir.